Welcome to Vidya Mandir classes. Today we shall go through the law of demand. My dear student, we shall talk or go through about the law of demand. Before going to law of demand, just to discuss what is demand. In our day-to-day life, we are telling that demand means to get something. So the children also discuss among themselves. We have the demand having the wristwatch and mobile phone or the laptop during observing their celebrating their birthday party. They are demanding something from their parents. But in economics, demand means something different. Desire backed by willingness and ability to buy the commodity. That is demand. And there you see the direct demand and the derived demand. First to discuss, let me clear what is demand. Demand means desire backed by willingness and ability to buy the commodity. So the three factors govern here to determine the demand. First one, desire. That means may be, may not be. Willingness must be, and ability must buying capacity. तो तीन चीज को लेकर हमारा डिमांड बनता है. एक डिजायर होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा. विलिंगनेस मतलब मस्ट भी, जरूरी है, बहुत जरूरी है. एबिलिटी मतलब पेइंग कैपेसिटी, हाथ में पैसा होना चाहिए, तब हमारा डिमांड फुलफिल हो सकता है. तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको तीन चीज का जरूरत होता है. एक डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी. The three factors govern the demand of the commodity. So, in our day-to-day life, we people are using three types of goods: inferior goods, superior goods, and ordinary goods. Inferior goods is not coming under the law of demand, and the superior goods is also not coming. Rather, we are discussing regarding the ordinary goods. In the case of ordinary goods, you people see the relationship between demand and price. That's the usual thing what we are doing in our day-to-day life while purchasing any commodity in the market. Must to ask regarding the price, because we are discussing regarding the normal consumer. And what is normal consumer? Those consumer which try to get maximum utilities out of each expenses, out of each spending. That's a normal consumer. Every normal consumer always want to utilize his money in a proper manner. तो proper manner में अपना जो income है उसको अगर ठीक से हम यूज करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसका प्राइस या रेट के बारे में पूछना बहुत जरूरी है. अगर हमारा एक जो लिमिट के अंदर आ रहा है तो हम जरूर उसको खरीदें. तो यूजुअल थिंग ये होता है, जो सस्ता होता है उसको ज़्यादा लोग खरीदते हैं. सो व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेनिंग दैट डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस. तो इसके बीच में जो रिलेशन है उसको जो एक्सप्रेस करता है उसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं. डिमांड एंड प्राइस. डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड फॉर द ऑर्डिनरी गुड्स. सो व्हाट एवर रिलेशन वी ऑब्जर्व, नॉर्मल गुड्स के केस में हम देखते हैं डिमांड ऑफ द कोमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कोमोडिटी. मतलब एक प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड घट जाता है. दैट मीन्स एट हायर प्राइस यूजुअली पीपल परचेज लेस ऑफ द कोमोडिटी, एंड एट लोअर प्राइस पीपल यूजुअली परचेज मोर ऑफ द कोमोडिटी. दैट मीन्स वी ऑब्जर्व द इनवर्स रिलेशन. मतलब एक बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है. ये जो रिलेशन को जो एक्सप्रेस करता है वो होता है लॉ ऑफ डिमांड. उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा, साथ साथ हमको डिमांड शेड्यूल एक लेना पड़ेगा, फिर डिमांड कर्व लेना पड़ेगा, तब फिर उसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे. लेट्स कम टू आवर टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड. सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? Other things
remaining constant demand of a commodity is inversely proportionate to the price of the commodity. So demand of the commodity is inversely proportional to the price of the commodity. They are both are moving in the opposite direction. If the price will high, the demand will low. If the price will low, then demand will high. That's an inverse relation. Just for take the common balance. If one side just move upward, other side move downward. That type of relation, the reverse movement, the opposite direction movement, there is the law of demand. We express in the case of normal goods. Okay. Let us discuss. So what should be the assumption while we are going through the law of demand? We assume various things while discussing the law of demand. First one, the consumer should be a normal person. The consumer should be a normal person. Second one, his taste, fashion, habit, tradition, custom should remain constant. Third one, income of the consumer should not change. Fourth one, prices of related goods should remain constant. Fifth, there is no change in population and climate condition. तो बहुत सारे हमको एजम्पशन लेना पड़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल पर्सन किसको बोलते हैं। नॉर्मल पर्सन ये होता है जो अपना इनकम को ठीक से खर्च करता है, उसको हम नॉर्मल पर्सन मानते हैं। हैविंग द फारसाइटेडनेस, हैविंग गुड आइडिया, हैविंग रेशनल वन, जो रेशनल होता है वो नॉर्मल होता है। रेशनलिटी, द पर्सन शुड बी रेशनल पर्सन, दैट्स अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। तो अपना जो इनकम होता है, आय होता है, उसको ठीक से जो खर्च करता है उसको नॉर्मल बोलते हैं और रेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो हिज टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइकनेस, हैबिट, कस्टम, ट्रेडिशन, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना। वो चेंज हो अगर हो जाता है तब फिर हमारे डिमांड में चेंजेस आ जाएगा। जैसे नाउ देयर इज अ फैशनेबल एज, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें हम खरीद रहे हैं। जैसे एक आदमी के पास एक मोबाइल, 2-3 मोबाइल खरीद के रखा है, एक घर में 3-4 बाइक हमको मिल जाएगा। भाई ये क्या है? हम बेस्ट हो जा रहे हैं, चेंजेस हो जा रहे हैं लाइफ का। ये नहीं होना चाहिए। आपका टेस्ट में चेंजेस नहीं चाहिए।
आपका इनकम नहीं बदलना चाहिए। इफ योर इनकम विल चेंज, ऑब्वियसली योर डिमांड विल चेंज। आपको कोई रुका नहीं सकता है, ऑब्वियसली। अब ताल दे के सोसाइटी में चलने के लिए क्या करोगे भाई? आपका इनकम 10,000 से 1,00,000 हो गया, नहीं भाई 10,000 में हम एक साइकिल यूज करते थे, अभी एक कार में आ जाते। टू मेंटेन योर स्टेटस, व्हाट यू आर डूइंग, अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। तब फिर हम क्या करेंगे? तो हमारा डिमांड को बदलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम नहीं बदलना चाहिए। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दो टाइप का रिलेटेड गुड्स होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक के बदले में दूसरा गुड्स अगर यूज करते हो फिर उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री, वी बाय यूजिंग बोथ द गुड्स साइमल्टेनियसली, दैट्स नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे टी एंड कॉफी, मान लो चाय का रेट मार्केट में बढ़ता है, तब फिर क्या होता है? कॉफी का डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो यहां तो हम इफेक्ट देख रहे हैं, प्राइस चेंजेस का इफेक्ट देख रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं मिलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पेट्रोल एंड बाइक, पेट्रोल रेट घटेगा तो मार्केट में बाइक बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाएगा। पॉपुलेशन, its composition and there is climatic condition, कूल क्लाइमेट कहीं चल रहा है, वो क्लाइमेट में चेंजेस वार्म क्लाइमेट हो जाएगा, अब इसलिए लोगों का डिमांड में चेंजेस आ जाएगा। सो व्हाइल गोइंग थ्रू द लॉ ऑफ डिमांड मस्ट टू मेक सर्टेन assumptions। ये सब चेंज अगर नहीं होगा तब डिमांड एंड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन को देखने के लिए मिलेगा। If all other things remaining constant, what I am telling this, if all these factors will remain constant, मतलब ये सब अगर चेंज नहीं होगा तब डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। और इसमें अगर चेंजेस हो जाता है तो फिर वो लॉ ठीक से काम नहीं करेगा। व्हाट प्रोफेसर मार्शल हैज गिवन, दैट लॉ ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं व्हाइल गोइंग थ्रू द लॉ ऑफ डिमांड मस्ट टू कीप all other things remaining constant, or all this factor remaining constant, then there is inverse relationship between demand and the price of the commodity. Let us go through the demand schedule and demand curve. What is demand schedule? Demand schedule explains the numerical relationship between quantity demanded and price. अब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन, ये होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में भी टू टाइप्स, वी आर डिवाइडिंग इनटू टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कंपनी। For a market, in the market you see lot of consumers are there, lot of people are there. So if we join together all the individual demand, what the people are demanding, that will get the market demand. मान लो आलू का रेट 10 रुपया है, हमारे घर के लिए 3 kg आलू चाहिए, तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट में तो लाखों कंज्यूमर है, सबका डिमांड को नहीं भाई 10 रुपया होने से हमारा मार्केट में 200 क्विंटल आलू खत्म हो गई, ये वो मार्केट डिमांड हो गया। तो ये जो न्यूमेरिकल रिलेशन है डिमांड और प्राइस के बीच, ये होता है आपका न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, ये होता है डिमांड शेड्यूल। और सारे डिमांड शेड्यूल को अगर जोड़ देते हैं तो फिर बनता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये डिमांड शेड्यूल में भी हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन। आलू का रेट 10 रुपया, एक आदमी 5 किलो लेके जा रहे हैं। आलू का रेट भाई 25 रुपया हो गया, 2 किलो लेके जा रहे हैं, तो क्या है इनवर्स रिलेशन हो गया ना। एक आदमी का, एक इंडिविजुअल का अगर इनवर्स रिलेशन शो होता है तो तब मार्केट में हो ही जाएगा। मार्केट का भी वही सेम चीज होता है, अगर सस्ता होता है ज्यादा सेलिंग, कॉस्टली होगा तो कम सेलिंग। दैट नेगेटिव रिलेशन दैट एक्सप्रेस थ्रू द डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल के थ्रू में हम नेगेटिव रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, लेट्स सी द डिमांड शेड्यूल। मान लो कंज्यूमर, दो कंज्यूमर है, लेट इट बी ए एंड बी आर द कंज्यूमर इन द मार्केट। प्राइस
quantity demanded by A, quantity demanded by B, market demand. This is in rupees, this is in kg, this is in kg, and this is also in kg. 5, 10, 15. ठीक है, ये 30, 20, 10, 40, 30, 20, 70, 50, 30. So you will see that. आप लोग देख रहे हो ना, ये 5 रुपया से जब 15 रुपया बढ़ते जा रहा है कमोडिटी का रेट, अब देख रहे हो ए का डिमांड घटते जा रहा है, बी का भी simultaneously observe that decrease in the demand when the price of the commodity is increasing in the market. So I am making just the total 30 plus 40, 70. When the price of the commodity is 5 rupees, that is 70 kg demanded in the market. Like that, when the price increases to 52 kg, our demand decreases to 30 from 70. So here we observe the negative relation between demand and the price. इसको अगर हम ग्राफ में एक्सप्रेस करते हैं, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इन्होंने डिमांड कर्व, इफ यू प्रेजेंट द डिमांड शेड्यूल इन द ग्राफ पेपर, यू गेट ए कर्व दैट इज नोन एज योर डिमांड कर्व. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज योर डिमांड कर्व. देयर आल्सो यू सी द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक्सप्रेस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, where the market demand curve express the graphical representation of market demand schedule. तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हम कैसे पाए? सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर हॉरिजॉन्टल हम जोड़ देते हैं तब मिल जाता है मार्केट डिमांड कर्व. सो मार्केट डिमांड कर्व इज द समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. और डिमांड कर्व का शेप कैसे होगा? For the case of normal goods, demand curve having the shape downward sloping from left to right. Demand curve slope downward from left to right in the case of normal goods. Let's see. If I express this one, if I present this demand schedule in the curve, then I get the demand curve. So this one. So this is the demand curve of consumer A, that's a DA, DB, that's the demand curve of consumer B, and this is DM, demand curve of market, so price of the commodity I am taking in the y-axis, and quantity demanded in the x-axis I am taking it. And the price of the commodity is OP, consumer is demanded OQ, consumer B is demanded OQ dash, and total demand in the market is OQ double dash. Okay, here we take the x-axis quantity demanded, and in the y-axis you take the price. So OQ double dash equal to OQ plus OQ dash. ठीक है, ये अगर प्राइस घट जाता है मार्केट में तब क्या होता है? मान लो यहाँ हमारा डिमांड में इंक्रीज हो जाता है, ए के बी के और मार्केट डिमांड तीनों में इंक्रीज हो जाता है. देखो इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ मार्केट, एंड ये कंज्यूमर ए का इंक्रीज हो गया, कंज्यूमर बी का इंक्रीज हो गया और मार्केट में भी इंक्रीज हो गया. तो व्हाट्सएप ऑफ डिमांड कर्व यार ऑब्जर्विंग, भाई देखो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमको मिल रहा है, दैट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये नेगेटिव रिलेशन हमको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इट इज एक्सप्रेसिंग द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उसके बाद हम आते हैं लिमिटेशंस. कौन सा फील्ड में ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है? Where the law of demand is not working. First one, necessary goods, medicine, salt,
ये नेसेसरी गुड्स, नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। विदाउट मेडिसिन, विदाउट सॉल्ट वी कैन नॉट सर्वाइव। सो दोज कंज्यूमर दे आर द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। जो कंज्यूमर का ये बहुत जरूरी है, वो कभी प्राइस को देखेगा? डेफिनेटली नॉट। लाइफ सेविंग मेडिसिन मस्ट टू परचेज व्हाट एवर द प्राइस, नेवर केयर द प्राइस, यू आर परचेजिंग दैट कमोडिटी, whether it is low price or high price, whatever it may be, the consumer must purchase. Okay. In the case of prestigious goods, the people having prestige conscious people, जो लोग prestige conscious है वो क्या करेंगे? At higher price they will purchase more of the commodity to show, to display themselves in the society, to show their position in the society. What they can purchase? At higher price they purchase more, at lower price they purchase less. Okay, just like the diamond necklace, Mercedes Benz, they are purchasing more amount of selling is there at a higher price because they display themselves in the society. Next one, जो हमारा कन्वेंशनल नेसेसिटीज है, देखो नहीं होने से नहीं चल पाएंगे हम। ये मे बी कस्टम, ट्रेडिशन, हैबिट, some habitual people are there, they are taking the wine, pan, gudka, masala, they are taking like that, cigarette smoking, they never consider the price. प्राइस को कंसीडर नहीं करते ये लोग, तो दैट इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो इंफीरियर गुड्स हम देखते हैं, इंफीरियर जो लो क्वालिटी गुड्स, उसमें थोड़ा सा अगर प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो लोगों का माइंड में ये सोच आता है भाई ये आपका क्वालिटी बड़ा मतलब सुपीरियर हो गया, तब डिमांड बढ़ेगा। और प्राइस घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, नीचे आने से उसका डिमांड घटता है। सो यू पीपल वांट टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड में क्या आता है, मस्ट गिव द स्टेटमेंट ऑफ द डिमांड। लॉ का जो है स्टेटमेंट दे दो, साथ साथ आपका शेड्यूल में आ जाओ, फिर आपका ग्राफ में आ जाओ, वेरियस एजम्पशन को ले लो, देन द लिमिटेशन। दीज आर द वेरियस पार्ट्स दैट वेरी यूजफुल टू एक्सप्रेस यू द लॉ ऑफ डिमांड। या आपको लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए सब वेरियस पार्ट्स को माइंड में रखना पड़ेगा, तब एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।